नमस्कार जी। Vishnupriya, नमस्कार Surya, दीदी। both of you on your video, please. नमस्कार मैम। नमस्कार सूर्य, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो in the Yes, previous class I have given you some homework or what? What homework it was? Prokaryotes और eukaryotes के बारे में we were dealing with, and apart from that bacterial cell we deal. So everything was completed. Only the plasma membrane is left in that topic, isn't it? केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन था जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। बाकी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस और प्रोकैरियोटिक सेल हम लोगों ने पढ़ लिया। तो in the bacterial cell, how many cell organelles were there? Which are those? Tell me the name of the cell organelles. बैक्टीरियल सेल में कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल है, उसके अंदर में क्या क्या रहता है वो बताइए। मैम सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, पीली और न्यूक्लियोइड, राइबोसोम और फ्लैजेला और प्लाज्मिड। आपका बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो प्लाज्मिड, वो क्रोमेटिन मटेरियल, सबसे पहला आप बोलोगे क्रोमेटिन मटेरियल क्योंकि वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते रहता है। यस सूर्या, एनीथिंग एल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल? यस सूर्या, टेल मी। ओके, नो प्रॉब्लम। हम सेल राइबोसोम। वॉल, या सेल वॉल, हम प्लाज्मा राइबोसोम। मेम्ब्रेन, अंदर में जो विस्कस लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो है आपका साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो है क्रोमेटिन मटेरियल। उसके अलावा प्लाज्मिड, राइबोसोम, फ्लैजिलम, pili, these all are the cell organelles which is present, isn't it? Flagellum and pili are outside of the cell, outside रहता है उस सेल का। तो उसका काम होता है केवल लोकोमोशन, मूवमेंट, या फिर कैचिंग द फूड, एनीथिंग, व्हाटएवर, ग्रास्पिंग द फूड, एनीथिंग। जो ये प्लाज्मिड होता है और क्रोमेटिन होता है, एनीथिंग सिमिलर इट इज देयर इन द प्लाज्मिड एंड क्रोमेटिन मटेरियल? दोनों में क्या प्रेजेंट रहता है? दोनों में ही डीएनए प्रेजेंट रहता है, लेकिन जो क्रोमेटिन वाला डीएनए है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जो प्लाज्मिड वाला डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन नहीं करता, उसमें बस डीएनए रहता है, isn't it? प्लाज्मिड डीएनए जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ऑल ऑफ यू प्लीज कीप ऑन राइटिंग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन योर कॉपी, ओके? Take out your copy also, at the same time you write the important points in your copy so that at least when you are turning your copy, at least it will remind everything whatever you have learned. Rashmi, are you there? Yes, ma'am. On your video, please. Yes, ma'am. Ma'am, I'm just taking my Check book and out your notebook back, copy. then I will open. Okay. Check out your copy. Yes. Yes, Rashmi. All of you. ठीक है, अब 10 मिनट हो गया। प्रीवियस क्लास हम लोग 10 मिनट तक ही रिवीजन कर सकते हैं, उसके बाद वी हैव टू डील विद द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट एवर वी आर डीलिंग नाउ। Like, yes, Rashmi, Vishnupriya, Surya, all of you on your video, please. ठीक है। तो एक बार मैं और एक बार प्रीवियस क्लास का जो भी पढ़ाया था वो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, फिर अभी इस क्लास में जो होगा वो स्टार्ट करेंगे। In the previous class, we were talking about the prokaryotic cells, in which we have taken the example of bacterial cell. We have seen the diagram of bacterial cell, which is oval in shape. In that
there are many membranes are there. Like the outer covering, it is called as cell wall, which is only helpful in the protection and giving the rigidity and supporting the cell, like that. And the inside, it is the plasma membrane, which we have not dealt till now. And inside, जब आप और अंदर जाते हो, तो there will be viscous like structure all over the cell. It is present, which is called as cytoplasm. In the cytoplasm, all the cell organelles will be present. In the cytoplasm, all the cell organelles will be present. All the cell organelles will be present. And in this, what is that? First thing, it is chromatin, which is a thread-like structure, and which contains the DNA. DNA, which is the genetic material which passed from one generation to the next. In that, we have also learned about the plasmid DNA. Plasmid DNA only provide the antibiotic resistance. ये सब सारा points आपके कॉपी में लिखा रहना चाहिए, ठीक है? तभी आपको एक बार पलटोगे तो फिर याद रहेगा. Otherwise, you will forget. Another one, we have talked about the ribosome, which is helpful in the RNA synthesis. And apart from that, plasmodium and pili, which is helpful in the locomotion as well as catching the food, like that. After that, now we will start with the eukaryotic cell. अभी eukaryotic cell के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Yes, Yashi, do you have any idea about the eukaryotic cell? Yashi, are you there? Vishnupriya, Rashmi, please on your video, all of you. Ayush, Yes, ma'am. चलो बोलते चलो. eukaryotic cell के बारे में कुछ भी बताओ. Talk about eukaryotic cell. Ma'am, true nucleus. True nucleus in the eukaryotic cell. That's good. That is the best. मतलब वो सबसे important point है कि उसके पास true nucleus है. Yes, ma'am. Organized nucleus membrane and nucleus membrane present. Yes, all the membrane bound organelles will be there. Okay, all the membrane bound organelles will be there in the eukaryotic cell, which is absent in the prokaryotic cell. Okay, now next one. Yes, Vishnupriya, do you have anything you want to tell me? इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियोलस, यस. तो यहाँ पे जो आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखे थे वो केवल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था जो क्रोमेटिन था. अब जो यूकैरियोटिक सेल का हम लोग न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना, उसके अंदर भी न्यूक्लियोलस भी रहता है, ठीक है? तो दैट इज द एक्सेप्शन इन द प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज द यूकैरियोटिक सेल. यस सूर्या, he left. Yes, Rashmi, tell me any other point. Yes, Rashmi, tell me any other point about the eukaryotic cell. Ma'am, of eukaryotic and prokaryotic. Yes, beta, I'm not able to hear you properly. Please tell me once again. Ma'am, difference between eukaryotic and prokaryotic. Yes, I'm only asking about the characteristic of the eukaryotic cell because I'm going to start that topic. Okay, ma'am, ma'am, eukaryotic contains more than one chromosome. That is that cell and multicellular, unicellular, multicellular you are talking about. Okay, that's not a big deal. Okay, fine. So 3-4 पॉइंट जो आप लोगों ने बोला वही बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहला कि जो इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तीसरा ये न्यूक्लियोलस के बारे में जो आपने बोला, ये सब सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू हैव टू लर्न. जब आप डिफरेंसेस लिखोगे तो ये सब पॉइंट जनरली आपको मेंशन करना पड़ेगा. छोटा सा आप डिफरेंस बोल सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल छोटा रहेगा, यूकैरियोटिक सेल्स बड़ा रहेगा, ठीक है? मतलब यूकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो छोटा रहता है, इस तरीके से. Now we will talk about the eukaryotic cell. First I'll draw the figure and after that I'll start dealing with that. Okay. तो यूकैरियोटिक सेल्स का आप ऐसा फिगर बना सकते हो, एक सर्कुलर टाइप का, और in that there will be double layered. तो यूकैरियोटिक सेल में अब आप जानते हो कि अब एक प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे. Why we will deal with both the cell differently? Because in the plant cell
one cell organelle is present which is not present in animal cell, that is about chloroplast, and in the animal cell cell wall is not present. Okay, सेल वॉल एब्सेंट रहता है, तो ये वाला चीज आपका एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है, प्लांट सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो ये सब थोड़ा अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले जो कॉमन है वो पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेल वॉल रहेगा, फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में दोनों में रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो सबसे पहले हम लोग विल स्टार्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट विल डे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, whenever you are talking about the plasma membrane, no, you have to say that it is the semi permeable membrane. परमिएबल, परमिएबल वर्ड क्या हो गया? परमिएबल जो परमिट कर रहा है, परमिएबल जो परमिट कर रहा है, मतलब उसको परमिशन दे रहा है आने जाने का। लेकिन ये सेमी परमिएबल है, इसका मतलब देयर विल बी द सेलेक्टेड सब्सटेंस ओनली व्हिच इज अलाउड टू गो इनसाइड, there are only the selected substance which allow to go inside, that's why it is called as the semi permeable। तो जैसे ही आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम ही सुनोगे तो सबसे पहला पॉइंट बोलोगे that it is the semi permeable membrane। कौन सा मेम्ब्रेन हुआ ये? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। semi permeable membrane because it allows only the selected substance to go inside। दूसरा, सेल वॉल के बारे में मैंने क्या बोला था? इज इट लिविंग और नॉन लिविंग? Is non it living? All living. Non-living. But when we talk about the plasma membrane, this is the living material, क्योंकि ये ग्रो भी होता है, टूटता भी है, खत्म भी होता है, बढ़ता भी है, ऐसा। तो that's why it is living cell, okay? But in case of cell wall, that is the non-living cell। तो पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हो गया वो सेलेक्टिव परमेबल है, दैट इज कॉल्ड सेमी परमेबल। दूसरा पॉइंट आप आवाज नहीं आ रही है मैम। मैम योर वॉइस इज पतला है ब्रेकिंग। कि आप उसको ऐसे नहीं देख सकते जब तक कि आप लाइट मैक्रोस्कोप मेम्ब्रेन, ओके। सो इट इज लाइट, इट इज सेमी परमेबल, इट इज लिविंग, और ये मेंटेन करता है होम्योस्टासिस को, ये मेंटेन करता है होम्योस्टासिस को। आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? यस ये मैम। मेंटेन करता है होम्योस्टासिस, ओके। हाँ, टेल मी द पॉइंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैम इट्स अ नॉन लिविंग Yeah, सेमी। It is in the liquid form. yes, it is the selective permeable, it is thin, and apart from it is living material। जब हम लोग होम्योस्टेसिस बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि सेल्फ रेगुलेटिंग, वो रेगुलेट करता है, उसको मालूम है कि हमको कौन सा सब्सटेंस अलाउ करना है, कौन सा सब्सटेंस अलाउ नहीं। आवाज नहीं आ रही है मैम। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि उसको पता है कि कौन सा सब्सटेंस उसको अलाउ करना है। जैसे आपको जब रेस्पिरेशन लेना होता है, आपको ये, यस आयुष, यू आर एबल टू हियर मी नाउ? यस मैम, अभी आ रही है, तभी नहीं आ रही। तो वो उसको होम्योस्टेसिस मतलब कि उसको वो सेल्फ वो रियलाइज करता है कि उसको क्या चीज सेल के अंदर भेजना है और क्या चीज सेल के अंदर नहीं भेजना है। जैसे बॉडी में कोई बैक्टीरिया और वायरस आया, आपने कुछ खाया पिया और उसके अंदर जो है बैक्टीरिया और वायरस भी आ गया, तो वो सेल को अलाउ करेगा कि नहीं करेगा? सेल उसको अलाउ करेगा अंदर आने के लिए कि नहीं अलाउ करेगा? Of course नहीं allow करेगा, because the bacteria viruses are harmful for the body, so they won't allow। लेकिन when you will eat something which is helpful for your body, which makes you strong, which makes you healthy, that will allow inside your body। Like when you will talk about the oxygen, अब ऑक्सीजन आपके बॉडी में आ रहा है, आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन आ रहा है, सेल उसको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा?
ऑफ कोर्स अलाउ करेगा। तो दिस टाइप ऑफ परमिएबिलिटी मतलब वो किस सब्सटेंस को लाना है अंदर, किस सब्सटेंस को नहीं लाना है, उसी को सेमी परमिएबल बोलते हैं। और क्योंकि इसमें ये रेगुलेट करने की कैपेसिटी होती है तो उसको हम लोग होम्योस्टैसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योस्टैसिस। इसकी Homeostasis. वजह से आपका बाहर का एनवायरनमेंट, सेल के बाहर का एनवायरनमेंट और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है। ठीक है। So now we will talk about the important cell organelle, that is that which we are reading about plasma membrane only. तो इसमें आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया? सेमी परमेबल, होम्योस्टैसिस, थीन है बहुत ज्यादा और लिविंग है। चारों पॉइंट आप अपने कॉपी में लिखिएगा, मेंशन कीजिए। After that, apart from that, when you will talk about the composition of the plasma membrane, जब इसके बारे में बात करोगे कि इसमें होता क्या है, तो ये 75% जो है फॉस्फोलिपिड का बना रहता है। 75% किसका बना रहता है? फॉस्फोलिपिड का। किसका बना रहता है 75%? फॉस्फोलिपिड्स का। और जो रिमेनिंग 25% रहता है उसमें प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसेक्राइड ये सब प्रेजेंट रहता है। प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, पॉलीसेक्राइड। लेकिन इसका 75% जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड का बना रहता है। ठीक है। तो कैन यू रिमेम्बर दैट? तो आपको इतना पॉइंट याद रखना है, सेलेक्टिव परमेबल, थीन, लिविंग, 75% फॉस्फोलिपिड, रिमेनिंग आर द प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और पॉलीसेक्राइड, और ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है। तो इतना पॉइंट्स आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आई विल शो यू द फिगर फर्स्ट। अब इसके हम लोग फंक्शन के बारे में अगर बात करें तो जैसे यहाँ है आपका ये फिगर सबके बुक में होगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज द मॉडल व्हिच इज गिवन बाय दैट एंड दिस इज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया कि फॉस्फोलिपिड किधर है, एंटीजन क्या होता है, ग्लाइकोलिपिड। लेकिन आप लोग को ये सब डिटेल में पढ़ना नहीं है। ठीक है। केवल आपको एक नाम बेसिस पे कि ये एक फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, जो which is given by the Sanger and the Nicholson, which is given by the Sanger and the Nicholson। ठीक है। तो उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा अंदर जाके उसका पूरा लिविंग स्ट्रक्चर जो है उसको पता लगाया था। यस, एनीबॉडी इज सेइंग समथिंग? नो। अब उसके फंक्शन No, के ma'am. बारे में अब जानते। तो जब फंक्शन के बारे में जानोगे तो वो दो टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर पाता है, एक फिजिकल फंक्शन, फिजिकल एक्टिविटीज, और दूसरा बोलोगे फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। पहला फिजिकल एक्टिविटीज और दूसरा पहला फिजिकल एक्टिविटीज और दूसरा फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। तो फिजिकल एक्टिविटीज में आपका क्या होता है? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। फिर नया नया टर्म्स आ रहा है, यही वजह कि मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ाया था, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू लर्न। तो Yes, इसके ma'am. फिजिकल एक्टिविटीज में दो एक्टिविटीज आता है, एक डिफ्यूजन, एक ऑस्मोसिस। Plasma membrane has two types of activities, one physical activities, another one it is called as biological or physiological activities। लिखे आप लोगों, मेंशन इट इन योर कॉपी प्लीज। फिजिकल एक्टिविटीज और दूसरा फंक्शन है बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। इज इट डन? बायोलॉजिकल के बाद में फिजिकल एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल रहता है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। Osmosis. हाँ, ये अभी आप पढ़ोगे क्या होता है वो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के अंतर्गत दो चीज आता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्सोसाइटोसिस। एक्सो बोलो एंडोसाइटोसिस, आप लिखो एंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस।
हो गया। एक्टिव ट्रांसपोर्टेंट एंडोसाइटोसिस, ठीक है। जब आप डिफ्यूजन की बात करते हो तो डिफ्यूजन में सारे मटेरियल का अलाउ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। When you are talking about the osmotic function of the plasma membrane, it means only talking about the water soluble. जो पानी में घुला हुआ है बस उतने ही मटेरियल की बातें करते हैं, गैस और सॉलिड की बातें नहीं करते हैं। मैम इन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। यस दैट इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में जब बातें करोगे तो वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों की बातें करोगे, मतलब तीनों सब्सटेंस वो अलाउ कर रहा है। लेकिन जब ऑस्मोसिस की बातें करोगे तो केवल वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के बारे में बातें करोगे, ठीक है। अब क्या हो गया वाटर सॉल्युबल और क्या हो गया गैस? तो गैस आप जानते हो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप जब सांस लेते हो Yes, ma'am. ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन टाइम, आप ऐसा नहीं है कि आपके नाक में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अलग अलग गैसेस को ये कर पाए, डिफरेंशिएट करके केवल ऑक्सीजन ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। यू आर टेकिंग ऑल द गैसेस वॉट एवर इट इज प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, जितने भी गैस है वो सबको ले रहे हो। लेकिन आपके सेल में इतनी कैपेसिटी है कि वो केवल ऑक्सीजन को अंदर ला रहा है, बाकी किसी गैस को आने नहीं दे रहा। आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? Yes, ma'am. यही चीज when you will Yes, talk ma'am. about the plants, when you will talk about the plants, that time their cell is only having the capacity to take the carbon dioxide, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो केवल सेल में कैपेसिटी होती है उसके कि वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ले ले और ऑक्सीजन को छोड़ दे। लेकिन आपके सेल में क्या कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन ले लेता है और बाकी सारे गैसेस को बॉडी से निकाल देता है। When you are inhaling, you are not inhaling the oxygen, you are inhaling all the gases whichever it is present in the environment, but only the oxygen is able to reach to the cell, जो आपके बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसको याद रखेगा। अगर कोई आपसे पूछे कि सांस लेते समय आप क्या लेते हैं, तो ये कभी नहीं बोला कि ऑक्सीजन लेते हैं, केवल हम लोग ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, लेते तो हम लोग सारे गैसेस हैं, ठीक है। तो रिमेम्बर दैट दिस मेनी पॉइंट्स। नाउ डिफ्यूजन की जब बातें करोगे तो व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट, इट इज टॉकिंग अबाउट द सॉलिड आल्सो। सॉलिड में सारे आपके मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये सब आ गए। गैसेस में आपके ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब आ गए। लिक्विड में ये वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस को भी अलाउ करता है। जितने भी आपके फूड मटेरियल है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स है, वो वाटर में ही डिसॉल्व होते हैं। अगर आपके सेल को रिक्वायरमेंट है तो वो अंदर लेगा, नहीं रिक्वायरमेंट है तो वो नहीं लेता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होम्योस्टैटिक प्रॉपर्टीज होता है। उसको मालूम है कि हमको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। आर यू गेटिंग चिल्ड्रन? Yes, ma'am. होम्योस्टैटिक प्रॉपर्टीज है। Now, when you talk about the osmosis, water also follows the role. ये भी एक टाइप का डिफ्यूजन ही हुआ, लेकिन ये इसमें केवल वाटर की बातें करेंगे, तो ये आपका ऑस्मोसिस इसको बोलते हैं हम लोग। Now, Yes, sir. अगर आपके बुक में है कुछ ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन तो प्लीज गो थ्रू दैट। इफ यू Okay, हैव ma'am. बुक, प्लीज गो थ्रू दैट।
Yes. दोनों में ही when you will talk about the diffusion and osmosis, it always goes from higher concentration to lower concentration. The एक बहुत ही concentration. सिंपल सा एग्जांपल ऑस्मोसिस के बारे में आई एम गिविंग यू। अगर प्लांट में पानी की कमी है और आपने सॉइल में पानी डाल दिया, ठीक है, अब आपके सेल में तो प्लांट के सेल में पानी की कमी थी और आपने सॉइल में डाल दिया, तो ज्यादा पानी कहाँ है आपके सॉइल में, मतलब हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, मिट्टी में। तो इट में. गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इट गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जो मिट्टी से था वो पानी सेल जो है ले लिया और अपने प्लांट को डाल दिया अंदर में। तो नाउ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस, यू कैन सी। और द बहुत ही कॉमन एग्जांपल दिया जाता है, जैसे रेजिन को आप पानी में डुबो दो तो वो पानी जो है रेजिन जो है अपने अंदर ले लेता है। जैसे किशमिश को पानी में या दूध को पानी भिंगाते हो किशमिश को, तो वो तुरंत अपने अंदर ले लेता है। तो यही है आपका ऑस्मोसिस, वो अपने मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर ले लेता है पानी। इट गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। डिफ्यूजन में भी वही होता है, जैसे आपको जैसे व्हेन यू आर रनिंग 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 एंड यू आर कीप ऑन इनहेलिंग लाइक ब्रीदिंग वेरी फास्ट, दैट टाइम योर बॉडी नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन। आपके सेल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि आपने बहुत दौड़ लगाया और उसके बाद आप जल्दी 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 सांस ले रहे हो, तो क्या हो रहा है, आप जल्दी जल्दी इनहेल कर रहे हो। तो वो बॉडी जो है फिर अगेन इन्वायरमेंट में सेल के बाहर में हायर कंसंट्रेशन है, आपके सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो वो जल्दी से आपके बॉडी सेल को ऑक्सीजन देना शुरू कर दे देगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब यही अपोजिट भी होता है, कभी कभी सेल के अंदर ज्यादा होता है, तो जो वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर ज्यादा है, जैसे प्लांट है या फिर एनिमल्स है, वो सांस आप एक्सहेलिंग के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड भी बना देता है। अब तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो it goes from the cell to the outside environment. Okay, so like that it is going vice versa. Are you getting, children? तो जो फिजिकल ट्रांसपोर्ट का फिजिकल एक्टिविटीज हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो दो एक्टिविटीज मैंने बताया था, एक फिजिकल एक बायोलॉजिकल। तो फिजिकल और एक्टिविटीज में physiological. हाँ, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। तो फिजिकल एक्टिविटीज में आपका दो ही है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में आप दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एंडोसाइटोसिस, ठीक है। Endocytosis. अभी पहले नाउ यू टेल मी कि सब कुछ सर के अंदर चला गया कि, और आई टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारा कुछ था जो पढ़ना है आपको। इज इट गोइंग इनसाइड? यस मैम। और या Yes, फिर ma'am. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक देके अब हम लोग न्यूक्लियस पहले डील कर लेते हैं, बिकॉज न्यूक्लियस विल कंप्लीट, Yes, ma'am. वो तुरंत हो जाएगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा ब्रेक लगाओ, क्योंकि अगर एक ही दिन सब कुछ पढ़ोगे देन यू वोंट बी एबल टू रिमेम्बर। इतना सारा पॉइंट बस याद रखो। नाउ विल टॉक अबाउट द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, नॉट अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो केवल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। But when you will talk about the nucleus of eukaryotic cell, it has the membrane, it has the pore, ये होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप बोलो, न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप का मतलब ही हुआ जो बाहरी से उसको ढके। ये जो बीच बीच में गैप होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। अंदर में आपका एक कैसे रहता है जो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस, Okay, ma'am. जिसका दो ही काम होता है, चाहे तो वो आरएनए बनाएगा चाहे तो प्रोटीन बनाएगा, बस दो ही काम होता है, आरएनए और प्रोटीन बनाएगा। और इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं रहता है। तो आपका इधर पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसमें मेम्ब्रेन है ना, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। और ये जो हो गया आपका क्रोमेटिन का थिक मटेरियल, जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहेंगे, ठीक है। दूसरा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया, क्रोमोसोम हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। सो दिस ऑल वी विल डील नाउ। न्यूक्लियोलस का क्या काम हो गया, वो आरएनए और प्रोटीन बना रहा है। न्यूक्लियर एनवेलप कवरिंग कर रहा है।
न्यूक्लियर पोर अलाउ करता है कि क्या चीज बाहर जाना है, और इसमें भी लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। जैसे सेल के अंदर भी लिक्विड स्ट्रक्चर था तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म ना। अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जो एक डॉट 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 यहाँ पे बना रहता है वो न्यूक्लियोलस होता है, और जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्रोमेटिन होता है। अब नाउ क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन आपका क्रोमोसोम का डेंस मटेरियल। आप क्रोमोसोम जो हो गया वो डेंस मटेरियल हो गया क्रोमेटिन का, और क्रोमोसोम इट कंटेन्स द डीएनए एज वेल एज प्रोटीन। कोई भी तो ऑन योर वीडियो प्लीज, आई वांट टू सी व्हाट यू पीपल आर डूइंग। आयुष, रश्मि, विष्णुप्रिया, सूर्या, याशी, एनीवन एल्स? आयुष को तो मैंने देखा ही नहीं है, याशी को एक झलक देखा है मैंने, अभी भी देख रही हूँ। आयुष, एक बार अपना चेहरा दिखा देना बेटा। मैम मेरा वीडियो तो ऑन रहता है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जब बात करेंगे, इसका आउटर कवरिंग न्यूक्लियर इनवेलप बोलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो, उसमें छोटा 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 सा गैप रहता है, दैट पोर इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। छोटा छोटा है तो न्यूक्लियर पोर है। अंदर में आपका जो भी डेंस मटेरियल है वो क्रोमोसोम है। मेन यही होता है जो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। जेनेटिक मटेरियल कंटेन डीएनए, एंड वहां पे आपका डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है। डीएनए का फुल फॉर्म, द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इट इज, इन द प्रीवियस क्लास मेनी टाइम आई हैव मेंशन्ड। अभी लिखो, नाउ यू राइट इन द कॉपी, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी यस मैम, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। यही जो आरएनए बोल रहे हैं वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, और जो डीएनए बोलेंगे वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो this DNA is the genetic material which pass from generation to generation. And when you talk about the nucleolus, it contains the chemical which only having the capacity to synthesize the RNA and protein. तो RNA का फुल फॉर्म क्या हो गया? न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, वो डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो इसमें विस्कस लाइक लिक्विड प्रेजेंट रह रहा है न्यूक्लियस के अंदर, वो हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। वो हो गया आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि न्यूक्लियोलस जो है वो आपका प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, न्यूक्लियोलस के क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम आप लोगों ने पढ़ा था क्या? राइबोसोम आप लोगों ने कहीं और भी पढ़ा था क्या बैक्टीरियल सेल में? प्लाज्मिड, राइबोसोम, जो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। बैक्टीरियल सेल में तो कुछ ही सेल ऑर्गेनेल है, तो इट इज इजी टू रिमेम्बर। कौन कौन सेल ऑर्गेनेल इट इज प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया? टेल मी आयुष। यस मैम, मैम सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन एंड राइबोसोम, साइटोप्लाज्म एंड मैम वन मोर, एक हो गया आपका जो ये हो गया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या कंटेन कर रहा है विष्णुप्रिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। वेरी गुड। प्लाज्मिड डीएनए कंटेन्स एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल में भी है, प्लाज्मिड में भी है, पर जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है वो केवल प्लाज्मिड वाले में है। दे आर नॉट द जेनेटिक मटेरियल। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल, जो हम लोग यूकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहता है, तो वहां पे जेनेटिक मटेरियल आपका कौन हो गया? क्रोमोसोम। जो आपका डेंस, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल सूर्या? व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक मटेरियल? which pass from Surya, which pass from generation to generation, which pass genetic material is the material which pass from generation to generation. न्यूक्लियोलस को एक फैक्ट्री बोला जाता है, क्या चीज का फैक्ट्री है वो? फैक्ट्री ऑफ
राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। Ribosome. मैं एक ही सेंटेंस बार बार इसलिए बोलती हूँ, आई एम कीप ऑन रिपीटिंग सो दैट इट विल बी स्टक इन योर माइंड, ठीक है, वो एकदम फर्स्ट जाए आपके दिमाग में, आपको याद रहे हमेशा। और जब आप बुक पढ़ो ना तो आपको लगे कि अच्छा अच्छा ये वाला टर्म तो पढ़े हैं, ये वाला टर्म तो पढ़े हैं, ऐसा। Okay, but in dealing with my class, please go through the books also as well as make the small notes so that आपको फ्यूचर में फिर डिटेल में ना पढ़ने पड़े, बस पलटना पड़े, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू योर बुक्स ऑल्सो, ऑल ऑफ यू, ओके। And if you are reading through the Google or Wikipedia, please mention the 9th standard level. कोई भी आप डिफिनेशन या फिर कुछ भी जानना चाह रहे हो उसमें 9th स्टैंडर्ड लेवल भी मेंशन करो, क्योंकि जैसे ही आप ऐसे बोलोगे तो वो आपको पीएचडी लेवल तक आंसर दिखा देगा, आपको उतना नहीं पढ़ना, 9th स्टैंडर्ड लेवल भी उसको बताना, ठीक है। कम नमस्कार एवरीवन। नमस्कार। बाय बाय, Namaskar, टेक ma'am. केयर, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, Namaste. बाय। How to leave the